तो कॉस्टिंग का ये जो चैप्टर 6 है डिसीजन मेकिंग, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम आज। अभी इसमें स्टार्ट करते हैं, ये वाले तो हो चुके हैं। टेस्ट योर नॉलेज से स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन उसके बाद कर लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एस मैनेज द स्कूल कैंटीन। एक मिनट को मैं भी खोल लेता हूँ। S manages the school canteen, approximately 1600 students at Noida. The current cash payment system requires 3 clerks, paid rupees 90 per hour. साथ साथ लिखते भी जाते हैं। क्या क्या है कि 600 स्टूडेंट्स हैं at Noida. The current cash payment requires 3 clerks. 3 clerks whom are paid rupees 90 per hour. Employed for about 4 hours a day. मतलब 4 घंटे पर डे इन लोगों का, मतलब एक दिन का अगर निकालें तो 90 इंटू 4 360 रुपीज़ इन लोगों का खर्चा है पर डे का। और कैंटीन ऑपरेट्स 240 डेज़, तो 240 डेज़ 360 रुपये अगर अपने लगेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 86,400 रुपीज़। एस इज कंसिडरिंग अ वायरलेस कैश मैनेजमेंट सिस्टम वेयर अ स्टूडेंट कुड जस्ट स्वाइप एन ID कार्ड फॉर पेमेंट। दिस सिस्टम वुड कॉस्ट 1,25,000। मतलब ये प्रपोज्ड प्लान है इन लोगों का टू सेटअप एन ID कार्ड फॉर पेमेंट विच वुड कॉस्ट अराउंड 1,25,000 टू सेटअप एंड 36,000 पर ईयर टू ऑपरेट। ये फिक्स्ड कॉस्ट होगी 1,25,000 और 36,000 इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट, variable expenses. S believes that he could manage with one clerk if he were to implement the system. Advise S on the choice of a plan assuming working life of WCMS. तो advise S on the choice of a plan assuming working life of WCMS as 5 years. तो अपने पास क्या क्या आ गया, सिस्टम का कॉस्ट है 1,25,000 रुपये, सेटअप कॉस्ट 36,000 रुपये, एक साल का ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है। Has believed that he could manage with one clerk if he were to implement the system. Advise S on the choice of a plan assuming working life of WCMS wireless cash management system as 5 years. Ignore the time value of money. तो अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट देखो तो 36,000 इंटू 5 साल की लगने वाली है 1,80,000 और फिक्स्ड कॉस्ट है अपनी 1,25,000 की। तो टोटल कॉस्ट अगर अब इस प्लान को अडॉप्ट करते हैं तो वो आ जाएगी 3,05,000 रुपये। तो हमें एडवाइस करना है कि क्लर्क रखें कि ये जो प्लान लिख आया है उसके हिसाब से जाएं, मतलब नया जो किया है। For each day S spends 360, that is 90 per hour into 4 hours. Therefore S spends 1080 per day to employ 3 clerks. मतलब ये एक क्लर्क की आ रही थी 360 और 3 क्लर्क अगर रख लेंगे तो 360 इंटू 3 इज इक्वल टू 1080 की कॉस्ट आ जाएगी। Therefore S spends 1080 per day to employ 3 clerks. Annually this amounts to 1080 into number of days is 240. तो ये अमाउंट आ रहा है 2,59,200 का। ओवर 5 years द आउटले वुड बी, ओवर 5 years अगर इस प्लान को देखा जाए तो इट वुड टोटल कॉस्ट ऑफ 12,96,000 3 क्लर्क को अपॉइंट करने का। इफ WCS इज इम्प्लीमेंटेड द इनिशियल कॉस्ट इज 1,25,000। इफ वी एड द एनुअल कॉस्ट ऑफ 36,000
The total cost over 5 years amounts to 3,05,000. Since one clerk will be needed as well, S had to incur 4,32,000. मतलब divide by 3, 4,32,000 over 5 years to pay clerk. Therefore, the total cost of this option is 4,32,000 plus 3,05,000. टोटल कॉस्ट आ जाएगी 7,37,000 इस ऑप्शन की. और अगर वो वाला ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आ रही है टोटल कॉस्ट 12,96,000. तो 7,37,000 माइनस 12,96,000 इज़ 5,59,000. ये हमारी सेविंग्स हो गई 5,59,000 की फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग WCS. Relevant non-financial consideration. The WCMS may be a lot more efficient but more rigid. For instance, what if a student forgets to bring his or her card or transaction failure due to connectivity issue and may not have enough cash to pay? Automated systems may be less able to handle these situations. Having clerks may add an aspect of flexibility and a human aspect that is hard to quantify. Conclusion. Obviously, WCMS option is more cost effective for S because there is a cost saving of 5,59,000, but non-financial factors should also be taken into consideration. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. Ayla runs the planetarium station in New Delhi, India. The strength of the station lies in its live interactions and programs for visitors, students, and amateur astronomers. The station is always active with programs for school and college students and for amateur astronomers. One of the station's key attraction is big screen IMAX theater. IMAX is a 70 mm motion picture film format which shows images of far greater size and resolution than traditional film systems. The IMAX cinema projection standards were developed in Canada in the late 1960s. Unlike traditional projectors, the film is run horizontally so that the image width is greater than the width of the film. The average IMAX show at the station attracts 120 visitors. इसको साथ साथ लिखते जाते हैं कि क्या क्या मतलब अपने पास इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में. एवरेज कस्टमर्स जो हैं, एवरेज IMAX शो अट्रैक्ट 120 विजिटर्स, 50 चिल्ड्रंस एंड 70, मतलब 50:70 का रेशो दिया हुआ है. एट अ टिकट प्राइस ऑफ 160 फॉर चिल्ड्रन एंड 200 फॉर एडल्ट्स. मतलब अगर 120 विजिटर्स आते हैं तो इनकम होगी हमारी 50 चिल्ड्रंस हैं इंटू 160. फ्रॉम चिल्ड्रंस इट विल बी 50 इंटू 160 8,000. और एडल्ट्स की अगर हम लें तो 70 एडल्ट्स हैं और 70 एडल्ट्स की टिकट का प्राइस है 200. तो 70 इंटू 200 इज़ 14,000. तो टोटल हमारा हुआ 22,000. Ayla estimates that running cost based on annual estimate of the number of IMAX shows. एक सेकेंड. Ayla estimate that the running cost per IMAX show are 10,000. अब कॉस्ट की बात करी जा रही है कि कॉस्ट कितनी होती है. कॉस्ट में सबसे पहले रनिंग कॉस्ट लगती है हमारी. रनिंग कॉस्ट पर शो इज़ 10,000. तो अभी पता नहीं है कि कितने शोज़ हम चला रहे हैं. इन एडिशन फिक्स्ड कॉस्ट लगती है हमारी 7,500 की, आर एलोकेटेड टू ईच शो बेस्ड ऑन द एनुअल एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ IMAX शोज़. तो 7,500 की जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको एलोकेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ शोज़ चल रहे हैं. द हॉबार्ट स्कूल हैज़ अप्रोच्ड Ayla about scheduling an extra show for its class 8 students. 100 students and 5 teachers are expected to join the special show on the planets and solar system, a feature that is currently showing. The school has asked Ayla for a price quote. The special show will take place at 8:30 a.m. when the IMAX is not usually open.
रिकमेंड द मिनिमम अमाउंट दैट आयला शुड चार्ज। मिनिमम अमाउंट की बात करी गई है ना। तो मिनिमम अमाउंट तो देखो, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो अपने को लेनी पड़ेगी, रनिंग द कॉस्ट। तो एक शो, मतलब एक शो रन करने का कॉस्ट 10,000 तो आता है, तो मिनिमम तो 10,000 लेना ही पड़ेगा, और उसके ऊपर फिर जो भी चार्जेस करेंगे। आंसर, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद IMAX शो appears to be 10,000, that is cost of running the show. The allocated fixed cost per show is not relevant. The allocated fixed cost per show is not relevant because the total amount of fixed cost for the year will not change as a result of the special show. Further, the stated ticket prices are not relevant because the show will take place at 8:30 a.m. when the IMAX is not usually open. तो इससे उसका दूसरा बिजनेस जो है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा. Thus, the students will not be displaying any regular visitors, displacing any regular visitors. Based on the financial data provided, the minimum price quote appears to be 10,000 rupees. मतलब कम से कम 10,000 कोट करना चाहिए उसको. आयला शुड कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स. मतलब ये क्वेश्चन मेजरली मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच से नहीं है बट थियोरेटिकल अप्रोच से. आयला शुड कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स. डज द स्टेशन हैव अ सोवेनियर शॉप एंड और अ कैफेटेरिया? If so, many students are likely to buy food or souvenir items, thereby increasing the station's contribution. In turn, this would reduce the minimum price quote. मतलब इससे अपना और ज़्यादा रेवेन्यू हो सकता है, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं. व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर रेवेन्यू? इससे फ्यूचर के रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट करेगा? आफ्टर सीइंग द शो, मेनी स्टूडेंट्स मे रिटर्न विद देयर पेरेंट्स, देयर बाय इंक्रीजिंग फ्यूचर रेवेन्यू. आर देयर कॉस्ट लिंक विद द स्पेशल शो that are not included in 10,000 rupees variable cost number? For example, will the station have to pay an overtime premium? Overtime premium तो नहीं पे करना पड़ेगा उस एक्स्ट्रा शो को चलाने के लिए. Ayla should also consider the educational mission of the planetarium station. Such shows directly contribute to this mission, the station, and hopefully the betterment of the students. The special shows may be an excellent way to expose some students to earth science. These students may have never gone through the planetarium station if it were not for the school exertion. Overall, the best price to charge is unclear and requires some judgment as Ayla need to balance an array of financial and non-financial factors. मतलब यही कि मिनिमम जो अपनी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 10,000 रुपीज़. तो कॉस्ट ऑफ रनिंग द शो, मतलब ये रेलेवेंट, मतलब ये वो वाली कॉस्ट रहेगी कि आप इतना तो आप कवर करो ही, इससे कम मत करो. बट ये कि इसमें दूसरे फैक्टर्स भी हैं कि अगर आपके पास शॉप है, कैफेटेरिया है, फ्यूचर रेवेन्यू आप देख रहे हो, और एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर कुछ एलोकेट हो रही है बिकॉज ऑफ अलग से, मतलब 8:30 बजे आप जो अपना शो है वो चलाओगे, उससे कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर लगेगी तो वो आपको पे करना पड़ेगा. अदरवाइज 10,000 इज़ द मिनिमम कॉस्ट विच ही वुड चार्ज. और बाकी अगर कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स देख के भी आप प्राइस को चेंज कर सकते हो. तो इसलिए जो कंक्लूजन दिया है आंसर में वो है कि प्राइस जो है वो अनक्लियर है. बेस्ट प्राइस जो है वो अनक्लियर रहेगी, उसको बैलेंस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स. ठीक है, लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. Color Paints is a manufacturer of industrial dyes. It has received an order for 200 kgs of powder dye that needs to be customized to certain specifications. हम साथ में इन्फॉर्मेशन लिखते जाएंगे कॉपी में ताकि मतलब सॉल्व करने में आसानी रहे. Color Paints, it has received an order for 200 kgs of powder dye. 200 kgs of powder dye, इसका रॉ मटेरियल होगा. अच्छा, रॉ मटेरियल नहीं है, सॉरी, ये कलर पेंट्स इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल डाइज. अच्छा, बनाता है डाइज ही बनाता है, तो डाइज सेल करेंगे. तो 200 किलोग्राम का ऑर्डर आया है. दैट नीड्स टू बी कस्टमाइज टू सर्टन स्पेसिफिकेशंस. द जॉब वुड रिक्वायर द फॉलोइंग मटेरियल. ये डाई बनाने के लिए अपने को 4 मटेरियल लगेंगे. मटेरियल ए बी सी डी. टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड इज 2000 ए का, 3000 बी का, 2000 सी का, 500 डी का. यूनिट्स ऑलरेडी इन इन्वेंट्री.
ए 0 है, बी 1200 रखा है, सी 1400 रखा है, डी 500 रखा है। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। बुक वैल्यू ऑफ द यूनिट इन इन्वेंट्री रुपीज़ पर यूनिट। बुक वैल्यू ऑफ द यूनिट्स इन इन्वेंट्री, मतलब बुक वैल्यू में किस वैल्यू से रिकॉर्ड किया हुआ है, इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि है ही नहीं ना अपने पास, तो क्यों रिकॉर्ड क्यों करेंगे। और बी को 7 रुपये से, सी को 12 से, डी को 9 रुपये से। रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है। बुक वैल्यू दिया है, रियलाइजेबल वैल्यू दिया है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया है पर यूनिट। ए का रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है 8 रुपये। अब फर्स्ट पॉइंट, मटेरियल बी इज़ यूज रेगुलरली इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डाइज दैट कलर पेंट्स, वो स्पेलिंग गलत लिख दिया इन लोगों ने, कलर पेंट्स produces. Therefore, any stock used towards this job order would need to be replaced to meet other production demands. Material B is used regularly in production of all types of dyes that color paints produces. Therefore, any stock used towards this job order would need to be replaced to meet other production demands. मतलब मटेरियल बी जो है वो कॉमन रॉ मटेरियल है जो दूसरी डाइज में भी यूज़ हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप रिप्लेस कर रहे हो क्योंकि आप दूसरे की डिमांड से उठा के यहाँ पे इसकी डिमांड फुलफिल कर रहे हो, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी देखी जा सकती है। आगे सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल सी एंड डी आर फ्रॉम स्टॉक दैट वाज परचेज्ड इन एक्सेस प्रीवियसली। मटेरियल मतलब जो इन्वेंट्री सी और डी है उसका स्टॉक एक्सेस परचेज कर लिया था तो वो इसलिए रखा हुआ है एक्स्ट्रा में। मटेरियल सी हैज़ नो अदर यूज़ अदर देन फॉर दिस स्पेशल ऑर्डर। मटेरियल सी जो है स्पेसिफिकली सिर्फ इसी डाई के लिए यूज़ होगा और किसी ऑर्डर में यूज़ नहीं होगा। और मटेरियल डी कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर 700 यूनिट्स ऑफ मटेरियल जेड। अब एक नया मटेरियल निकल के आया है मटेरियल जेड, उसमें डी यूज़ हो सकता है बट डी के 700 यूनिट्स ही यूज़ हो पाएंगे। करेंटली कॉस्ट जो है मटेरियल डी कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर 700 यूनिट्स of material Z which currently cost rupees 11 per unit. The company does not have any inventory of material Z currently. Z का अभी कोई इन्वेंट्री नहीं रखा हुआ। Required is analyze the relevant cost of material while deciding whether to accept the order or not. अब अपने को डिसाइड करना है कि हमें ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए 200 kg ऑफ पाउडर डाई का कि नहीं करना चाहिए। इसका भी आंसर थोड़ा थियोरेटिकली दिख रहा है बट उसको सॉल्व करेंगे तो वो होगा। अब इन्होंने कैसे किया है कि मटेरियल ए बी सी डी चारों को अलग अलग ट्रीट किया है। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल ए की। मटेरियल ए का क्या बोला है, द रिक्वायरमेंट ऑफ 2000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए हैज़ टू बी परचेज इन एंटायरिटी सिंस देयर आर नो यूनिट्स इन स्टॉक देयरफॉर द रेलेवेंट कॉस्ट विल बी द रिप्लेसमेंट कॉस्ट एट ₹8 पर यूनिट विच फॉर 2000 यूनिट्स इज 16,000 रुपीज़। मतलब अब ए की बात करते हैं तो क्वेश्चन में सिर्फ 8 रुपये दिया हुआ है रिप्लेसमेंट कॉस्ट और ना रियलाइजेबल वैल्यू दिया है ना बुक वैल्यू दिया है, तो उसको 8 रुपये पे परचेज़ करना पड़ेगा। तो मटेरियल ए की हमें रिक्वायरमेंट है 2000 यूनिट्स की और 2000 यूनिट्स अगर 8 रुपये पर यूनिट के उससे परचेज़ करते हैं तो 16,000 कॉस्ट निकलेगी मटेरियल ए की। ठीक है। मटेरियल बी, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ 3000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है बट 1200 पहले से ही रखे हुए हैं तो एक्स्ट्रा 1800 बाय करने पड़ेंगे। देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ 3000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी ऑफ विच 1200 यूनिट्स आर इन स्टॉक। मटेरियल बी यूज्ड रेगुलरली इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डाइज। इफ द 1200 यूनिट्स आर इन स्टॉक आर यूज्ड दे नीड टू बी रिप्लेनिश्ड, मतलब रिप्लेस करने पड़ेंगे अगर यूज़ करते हैं तो, क्योंकि वो दूसरे में भी आते हैं। इन ऑर्डर टू मीट प्रोडक्शन डिमांड्स ऑफ अदर डाइज। In addition, for the special order, additional 1800 units of material B is required to be procured from the market. Therefore, 3000 units of material B has to be procured if the special order is undertaken. मतलब 3000 यूनिट लगती अगर स्पेशल ऑर्डर करते तो, क्योंकि 1200 तो दूसरे से उठा रहे हैं अपन। तो द रेलेवेंट कॉस्ट विल बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट एट ₹10 पर यूनिट विच फॉर 3000 यूनिट्स इज 30,000 रुपीज़। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन रिप्लेस ही कर रहे हैं उसको, वैसे भी अपने पास होता तो भी अपन वो उठा लेते और मार्केट से अपने को 1200 यूनिट्स खरीदनी ही पड़ती क्योंकि वो दूसरी डाइज में लगी रही थी।
तो इसीलिए ये मानेंगे कि हमें वैसे भी ख़रीदना पड़ता है और ऐसे भी ख़रीदना ही पड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल 3000 यूनिट्स पे 10 रुपये जो हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है पर यूनिट वो चार्ज करेंगे। तो इसका 30,000 कॉस्ट आएगा मटेरियल बी का। अब बात करते हैं मटेरियल सी की। मटेरियल सी का क्या है कि 2000 यूनिट्स हैं चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट 2000 की है, 1400 ऑलरेडी रखी हुई है। और मटेरियल सी कैसा है कि वो सिर्फ इसी ऑर्डर में यूज़ हो सकता है। तो उसका बुक वैल्यू 12 रुपये दिया हुआ है और रियलाइजेबल वैल्यू 9 रुपये, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया 14 रुपये। आंसर, देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल सी ऑफ विच 1400 यूनिट्स आर इन स्टॉक। ठीक है, द बैलेंस 600 आर रिक्वायर्ड टू बी परचेज्ड। 2000 में से 1400 ऑलरेडी हैं तो 600 बाय करनी पड़ेंगी एट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट दैट इज़ मार्केट प्राइस ऑफ 14 रुपीज़ पर यूनिट पे इसको बाय करना पड़ेगा। तो हमारा कॉस्ट आएगा 600 इंटू 14, 8400 का। 8400 का कॉस्ट आया। और आगे, मटेरियल सी हैज़ नो अदर यूज, सो इफ़ द स्पेशल ऑर्डर इज अंडरटेकन द स्टॉक ऑफ 1400 यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट ₹9 per unit. Material C has no other use, so if the special order is not undertaken, the stock of 1400 units can be sold at ₹9 per unit. मतलब अगर उसको यूज़ नहीं किया जो स्टॉक में है तो उसको रियलाइज़ कर देंगे, बेच देंगे 9 रुपये पे। तो 1400 यूनिट्स अगर बेचते हैं 9 रुपये पे तो आएंगे 12,600 रुपये। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग दिस ऑर्डर इज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल ली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आई? 1400 यूनिट्स 9 रुपये पे 12,600 रुपये। Therefore, the relevant cost for material C is procurement cost of 600 plus the opportunity cost of not disposing the current stock of 1400 units, which would be 8400 plus 12,600. हाँ, अब मटेरियल डी की बात करते हैं। तो मटेरियल डी क्या है? बट क्वेश्चन में लिखा है मटेरियल डी कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर 700 यूनिट्स ऑफ मटेरियल जेड विच करेंटली कॉस्ट 1100 यूनिट्स 11 रुपीज़ पर यूनिट। द कंपनी डज नॉट हैव एनी इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल जेड करेंटली। तो डी की अगर बात करें, द इंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ 500 यूनिट्स, डी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 500 यूनिट्स की। और 500 यूनिट्स यू हैव मतलब अपने पास ऑलरेडी रखा हुआ है, तो नया खरीदने की तो ज़रूरत नहीं है। अब इसको वैल्यू किस पे करेंगे ये देखना है। द इंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ मटेरियल डी इज इन स्टॉक इफ द स्पेशल ऑर्डर इज नॉट एक्सेप्टेड। अगर स्पेशल ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट होता, कलर पेंट्स हैज़ टू ऑप्शंस, सेल द एक्सेस मटेरियल एट ₹12, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। Second option is use it as a substitute for material Z which would otherwise need to be procured. मतलब या तो बेच दो 12 रुपये में, या तो Z की जगह पे यूज़ कर लो क्योंकि उसका सब्सटीट्यूट हो जाएगा वो D। तो सब्सटीट्यूट करते, अगर सब्सटीट्यूट नहीं कर पाते Z के लिए तो अपने को Z के लिए खरीदना पड़ता मटेरियल, और मटेरियल खरीदते तो 11 रुपये का पड़ता। तो सब्सटीट्यूट कॉस्ट हो जाएगी 11 रुपये D की। द रियलाइजेबल वैल्यू, अब सबसे पहले रियलाइजेबल वैल्यू की बात करें तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ मटेरियल D इज़ 12 रुपीज़ पर यूनिट। तो 500 यूनिट्स इंटू 12 इज इक्वल्स टू 6000 रुपीज़। और फिर ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो मटेरियल डी कैन बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर 700 यूनिट्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल डी कैन बी, क्वेश्चन में लिखा है मटेरियल डी कैन बी यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर 700 यूनिट्स ऑफ मटेरियल जेड। आंसर है मटेरियल डी कैन बी यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर 700 यूनिट्स ऑफ मटेरियल जेड सिंस देयर इज no stock of material Z currently. If the special order is accepted, the entire quantity would have to be procured at ₹11 per unit. This would cost the company 7,700 rupees. 700 यूनिट अगर खरीदने जाते तो 7,700 रुपये लगते। Both option 1 and option 2 represent opportunity cost if the special order is accepted. The relevant cost for material D, if the special order is accepted, would be higher of either of these two opportunity cost. The higher opportunity cost of that of procuring material Z from the market at 7,700 rupees. Therefore, the relevant cost for material D is 7,700 rupees. Therefore, the relevant cost to accepting the special order would be the cumulative of the relevant cost of material A, B, C, D. This works out to be 74,700. That is total of A we have calculated 16,000.
बी का कॉस्ट आया था 30,000 रुपये, सी का कॉस्ट आया 21,000 और डी का कॉस्ट आया 7,700. तो टोटल इज 74,700 is the relevant cost of accepting the special order. Relevant cost of accepting the special order. ये वाला पैरा एक बार और पढ़ लेते हैं. Both option 1 and 2 represent opportunity cost if the special order is accepted. The relevant cost for material D, if the special order is accepted, would be higher of either of these two opportunity cost. The higher opportunity cost of that of procuring material Z from market at 7,700. ठीक है, हायर वाला अमाउंट ले लेंगे. So we have done third one. Now fourth question. डीजल इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी केमिकल प्रोडक्ट्स. साथ में इन्फॉर्मेशन लिखते जाते हैं कॉपी में. डीजल इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग मेनी केमिकल प्रोडक्ट्स. इट इज यूजिंग मेनी केमिकल्स, some of which are fast moving, some are slow moving, and few are in non moving category. The firm has a stock of 10 units. 10 units का स्टॉक है of one non moving toxic chemical. non moving toxic chemical है ONMTC शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. इट्स वैल्यू इज 2,400 यूनिट रुपीज़. 10 यूनिट का वैल्यू है 2,400. रियलाइजेबल वैल्यू इज 3,500 and replacement cost is 4,200. One of the customers of the firm asked to supply 10 units of a product which needs all the 10 units of the non-moving chemical as an input. ठीक है. The other cost associated with the production of the products are allocated overheads 16 रुपये per unit, out of pocket expenses 50 रुपये per unit, labor cost 40 rupees per hour. For each unit 2 hours are required. और अपने को 10 प्रोवाइड करने हैं तो 10 यूनिट्स के लिए, एक यूनिट के लिए 2 लगता है, तो टोटल 20 आवर्स लगेंगे अपने को. और पर आवर 40 रुपीज़ लगते हैं, तो 20 इंटू 40 इज 800 रुपीज़. और अदर मटेरियल कॉस्ट इज 80 रुपीज़ पर यूनिट. द लेबर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिप्लॉयड फ्रॉम अमंग द परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म. मतलब जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें से उठा के आपको ये वाले प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा. दिस टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट विल नॉट लीड टू एनी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अच्छी बात है. रिक्वायर्ड क्या क्या निकालना है. रिकमेंड द मिनिमम यूनिट प्राइस टू बी चार्ज टू द कस्टमर विदाउट एनी लॉस टू द फर्म. एनालाइज विद रीजंस फॉर द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ईच ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. थर्ड इज एडवाइस अ प्राइसिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय डीजल इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. अच्छा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले निकालते हैं मिनिमम प्राइस दैट इज टू बी चार्ज टू द कस्टमर विदाउट एनी लॉस ऑफ द फर्म. मिनिमम प्राइस क्या चार्ज करनी चाहिए. सबसे पहले जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल. कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे कि रिलाइजेबल वैल्यू लेंगे या रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेंगे. अब जो 10 यूनिट्स हैं वो ये बोला गया है कि नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल है. तो नॉन मूविंग है मतलब किसी और में जा ही नहीं रहा है, और ये पूरे के पूरे ले जा रहा है. तो नहीं जाता तो भी अपने को अलग से बेचना पड़ता है इसको, ये कहीं अपना यूज़ नहीं हो रहा था. तो इसीलिए इसको रियलाइजेबल वैल्यू पे निकालेंगे. तो कॉस्ट जो है इसकी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये आ जाएगी 3,500. और एक यूनिट के लिए एक ही लगता है, तो 3,500 इंटू 10. नहीं, 3,500 तो टोटल कॉस्ट दी हुई है 10 यूनिट्स की. और अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो डिवाइड कर देते हैं 3,500 बाई 10, तो 350 रुपीज़ पर यूनिट. और एक्सपेंसेस में क्या क्या है. एलोकेटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, लेबर कॉस्ट और अदर मटेरियल कॉस्ट. और लेबर तो अपन ने परमानेंट से उठा के इसमें डाला है, तो इसीलिए अपना कुछ वो तो हुआ नहीं कि मतलब कुछ लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन तो कुछ होगा नहीं इसकी वजह से. और ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वो भी संक कॉस्ट है, मतलब वो भी इग्नोर कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये मटेरियल वैसे भी बेचने ही वाले थे अपन.
तो मिनिमम जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो चार्ज करेंगे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो इसी पर डायरेक्टली इनकर हो रहे होंगे। ये 50 रुपीज़ हो गए, और अदर मटेरियल कॉस्ट जो है वो भी कहीं और चार्ज नहीं कर सकते, इसी से रिलेटेड है, इसलिए यहीं पे चार्ज करेंगे। तो टोटल आ गया अपना 480। तो 480 इज़ द मिनिमम यूनिट प्राइस दैट कैन बी चार्ज। Therefore, the minimum unit price that can be charged to the customer without incurring any loss is 480 rupees per unit of product. As explained below in point 2, allocated overhead expenses and labor cost are sunk cost that have been ignored while calculating the minimum unit price to be charged. ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? एनालाइज विद रीजंस फॉर द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ईच ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब एक एक कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि क्यों हमने लिया है और क्यों नहीं लिया है। एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमने ये क्यों लिया है? रियलाइजेबल वैल्यू, relevant and hence included at realizable value. Diesel has 10 units of non-moving chemical input that has a book value of 2400 rupees. Realizable value is 3500 and replacement cost of 4200. Realizable value of 3500 would be the salvage value of the chemical had it been sold by Diesel instead of using it to meet the current order. मतलब या तो बेचता या फिर अगर करंट ऑर्डर पे भी लेता तो भी, मतलब बेचने भी जाता तो भी उसको रियलाइजेबल वैल्यू ही मिलता 3500 का, इसीलिए 3500 पे वैल्यू किया। This represents an opportunity cost for the firm and hence included while pricing the product. Book value would represent the cost at which the inventory has been recorded in the books, मतलब जितने पे खरीद के लेके आए थे cost. A sunk cost that has been ignored. Replacement cost of 4200 would be the current market price to procure 10 units of the input chemical. अभी खरीदने जाएंगे तो 4200 का पड़ेगा. This would be relevant only when the inventory has to be replenished after use. This chemical is from the non-moving category. That means that it is not used regularly in production process and hence need not be replenished after use. Therefore replacement cost is also ignored for pricing. मतलब ऐसा होता है कि अपने यूज़ में आ जाता बट तब भी अपने को खरीदना पड़ रहा है, मतलब किसी और प्रोडक्ट में अपन यूज़ कर लेते और इस 10 यूनिट्स में ना लगा के हम किसी और में यूज़ करते और इस 10 यूनिट्स के लिए अगर खरीद के लेके आते बाहर से, उस केस में अगर अपने पास जो रखा हुआ है उसको यूज़ करते तो अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेते हैं। बट इस केस में क्या है, नॉन मूविंग आइटम है, इसीलिए जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो लेंगे इसकी कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट लेबर कॉस्ट, नॉट रेलेवेंट एंड हेंस एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्राइसिंग. इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम दैट दिस ऑर्डर वुड बी मेड बाय परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म. तो एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट नहीं लगेगी. परमानेंट एम्प्लॉय कॉस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट दैट डीजल वुड इनकर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दिस ऑर्डर इज प्रोड्यूस्ड और नॉट. ये ऑर्डर बनाते या नहीं बनाते तब भी लेबर कॉस्ट लगती ही लगती. So no additional labor is being employed to meet this order. Therefore, this cost is a sunk cost excluded from pricing. Okay. Third is allocated overhead expenses. ये भी नहीं लिया हमने cost में. These expenses have been incurred at another cost center. Typical example would be office and administration cost. Such costs are fixed in nature that would be incurred irrespective of whether this order is produced or not. Therefore, this cost is a sunk cost excluded from pricing. Out of pocket expenses. These are expenses that are incurred to meet the production requirement of this order. These are additional variable expenses that need to be included in pricing. क्योंकि ये additional variable expenses हैं, ये कोई fixed cost नहीं है अपनी, ये variable cost है. और other material cost ये भी हमने include किया है. These are expenses that are incurred to meet the production requirement of this order only. These are additional variable expenses that need to be included in pricing. ठीक है. अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा था? एडवाइस अ प्राइसिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय डीजल इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या करना चाहिए उसको? Under perfect competition conditions, diesel can have no pricing policy of its own. अच्छा, परफेक्ट प्राइसिंग में क्या होता है कि अपनी प्राइस आप नहीं चला सकते, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही उसी पे आपको बेचना पड़ेगा. यार सेलर्स आर द प्राइस टेकर्स. It cannot increase its price beyond the current market price. The firm can only decide on the quantity to sell and continue to produce as long as the marginal cost is recovered. When marginal cost exceeds the selling price, the firm starts incurring a losses. मतलब जब मार्जिनल कॉस्ट सेलिंग प्राइस से ज़्यादा चली जाती है तब लॉस होना चालू हो जाता है. सिंस डीजल कैन नॉट कंट्रोल द सेलिंग प्राइस इंडिविजुअली इन द मार्केट, इट कैन अडॉप्ट द गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड. कौन सा मेथड फॉलो करेगा इसमें? ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड. Hence,
it can keep its selling price at the average level charged by the industry. This would yield a fair return to the firm. An average selling price would help the firm attract a fair market share in the competitive conditions. फेयर मार्केट शेयर मिलेगा, फेयर मार्केट प्रॉफिट होगा अगर आप एवरेज सेलिंग प्राइस पे बेचोगे तो। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में यही होता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेकर्स होते हैं, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्राइस नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, नॉलेजेबल बायर्स रहते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है सबके पास, और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। Golden Pacific Airlines Limited operates its services under the brand Golden Pacific. The Golden Pacific route network spans prominent business metropolis as well as key leisure destinations across the Indian subcontinent. Golden Pacific, a low fare carrier launched with the objective of commoditizing air travel, offers airline seats at marginal premium to train fares across India. Profits of the Golden Pacific have been decreasing for several years. In an effort to improve the company's performance, consideration is being given to dropping several flights that appear to be unprofitable. Income statement for one such flight from New Delhi to Leh GP022 is given below per flight. पर फ्लाइट का अपने को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पूरा। टिकट रेवेन्यू 175 सीट्स हैं, उसमें से 60% ऑक्यूपेंसी रहती है, मतलब 60% ही आते हैं, तो 175 का 60%। टिकट रेवेन्यू 175 सीट्स इंटू 60% ऑक्यूपेंसी, तो 175 इंटू 60% इज़ 105 सीट्स, और टिकट प्राइस है 7000 का, तो 7,35,000 रुपीज़ आ रहा है अपना टोटल रेवेन्यू। उसमें से वेरिएबल एक्सपेंसेस है 1400 रुपीज़ पर पर्सन, तो 147 के हिसाब से 1,47,000 डिवाइड बाई 1400 करेंगे तो 105 ही ऑक्यूपेंसी के हिसाब से इन्होंने निकाला वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है, फ्लाइट एक्सपेंसेस, सैलरीज फ्लाइट क्रू, सैलरीज फ्लाइट असिस्टेंट, बैगेज लॉजिंग एंड फ्लाइट प्रिपरेशन, overnight cost for flight crew and assistants at destination 12,600, fuel for aircraft, depreciation on aircraft, liability insurance, flight promotion, हैंगर पार्किंग फी फॉर एयरक्राफ्ट एट डेस्टिनेशन। फिर नेट गेन और लॉस जो आ रहा है वो निकाल दिया, नेट लॉस आ रहा है अपने को अभी। तो इसमें क्या क्या है, सैलरीज हैं, ये फ्लाइट क्रू की, फ्लाइट असिस्टेंट की, दोनों की है ना, तो है तो वेरिएबल ही बट फिक्स जैसा मानेंगे इसको क्योंकि चेंज तो नहीं होगी बार बार। बैगेज लॉजिंग एंड फ्लाइट प्रिपरेशन, ओवरनाइट कॉस्ट, फ्यूल और डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन पे स्टार दिया हुआ है बेस्ड ऑन ऑप्सलेंस। देखते हैं आगे। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट फ्लाइट GP022। फर्स्ट इज members of the flight are paid fixed annual salaries, fixed है, whereas the flight assistants are paid by the flight। अच्छा, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन में लिखते जाते हैं कि ये फ्लाइट क्रू है जो उसकी फिक्स्ड है, और जो फ्लाइट असिस्टेंट है उसकी पेड बाय फ्लाइट है, तो वेरिएबल जैसे मान सकते हैं इसको। सेकेंड इज द बैगेज लॉजिंग एंड फ्लाइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस इज एन एलोकेशन ऑफ ground crew's salary and depreciation of ground equipment. Baggage lodging and flight preparation expenses and allocation of ground crew salary and depreciation of ground equipment. Okay. Third is 1/3 of the liability insurance is a special charge assessed against flight GP022 because in the opinion of insurance company the destination of the flight is in a high risk area. Liability insurance is of 1,47,000. 1/3 of the liability insurance is a special charge assessed against flight, मतलब 147 का 1/3 जो चार्ज किया है 49,000, वो अदरवाइज चार्ज नहीं करते, मतलब दूसरी फ्लाइट्स की बात करें तो उनका जो प्रीमियम आता है वो आता है सिर्फ 98,000 रुपीज़। बाकी ये वाली फ्लाइट क्योंकि जो डेस्टिनेशन है इसका वो हाई रिस्क एरिया में आता है, इसलिए इनसे 49,000 एक्स्ट्रा चार्ज किया। The hangar parking fee is a standard fee charged for aircraft at all airports, 7,000 rupees. ठीक है। If flight GP022 is dropped,
Golden Pacific Airlines has no authorization at present to replace it with another flight. कोई दूसरी flight नहीं चला सकते इसकी जगह पे. Required is using the data available, prepare an analysis showing what impact dropping flight GP022 would have on the airline's profit. तो इन लोगों ने भी अब थोड़ा समझाया ये पहले कि क्वेश्चन के बारे में क्या है, पढ़ते हैं. As per the statement given in the problem, flight GP022 incurs a net loss of 1,58,100. ठीक है. This is the net result of revenue less cost. Revenue is entirely variable depending upon passenger occupancy. Costs are both variable and fixed nature. To analyze the impact of dropping flight GP022, we need to recompute net gain or loss that Golden Pacific earns when it operates the flight based on relevant costing principles. तो अभी जो इन लोगों ने कैलकुलेशन करके दिया क्वेश्चन में, वो नॉर्मल मतलब ये था कि कितना रेवेन्यू आ रहा है और कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से नेट गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है. अब अपने को जो कैलकुलेशन करना है वो अपन करेंगे रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से. तो उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है वो चेक करेंगे. तो नेट गेन और लॉस एज पर रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स क्या हो जाएगा कि रेवेन्यू अर्न फ्रॉम फ्लाइट ऑपरेशंस लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. सिर्फ जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना उनको हटाएंगे, फिक्स एक्सपेंसेस की बात नहीं करेंगे अभी इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग में. Revenue earned is the ticket revenue earned from flight operations of GP022. This is entirely variable. Variable cost of flight operations are those expenses that would be incurred only when the flight is operated. जैसे उसमें वो वाली थी अटेंडेंट की सैलरी, और जो क्रू था उसमें एक फिक्स था एक वेरिएबल था. मतलब एक फ़्लाइट के बेसिस पे था और एक फिक्स्ड था. तो फिक्स्ड वाला तो ऐसा है कि अगर आप फ्लाइट नहीं भी चलाओगे तो भी आपको पे करना पड़ेगा. बट जो अटेंडेंट वाली सैलरी थी वो फ्लाइट बेसिस पे थी. अगर फ्लाइट नहीं होगी तो पेमेंट भी नहीं होगी, अगर फ्लाइट होगी तो पेमेंट होगी. मतलब वेरिएबल कॉस्ट है वो. These include variable expenses per passenger, salaries, flight assistants, overnight cost for flight crew and assistant, fuel for aircraft, a third portion of flight insurance that is specifically related to this flight sector, and flight promotion expense. These are expenses that will not be incurred if the flight is not operated, hence relevant for decision making. Other expenses like salaries of flight crew and hangar parking fees for aircraft are fixed expenses that will be incurred even if the flight does not operate. Hangar expenses. Loading and flight preparation expense is an allocated cost that will continue to be incurred even if flight GP022 does not operate. Depreciation of aircraft and liability insurance expense, two-third portion not related to a specific flight sector. These are sunk cost. मतलब नहीं भी चलाओगे तो भी लगनी है. These expenses have already been incurred and hence are irrelevant to decision making. Therefore, these fixed, allocated, and sunk expenses are ignored while analyzing the decision whether to continue operating flight GP022. अब अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इन लोगों ने डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन पे पहुंच गए. तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इफ द फ्लाइट इज कंटिन्यू. इनके हिसाब से कंट्रीब्यूशन मतलब कि कंट्रीब्यूशन तो वही होता है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस. तो टिकट रेवेन्यू इज 7,35,000 और वेरिएबल एक्सपेंसेस is 1,47,000. माइनस करेंगे 735 माइनस 147 इज 588. अब देखते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस लिए हैं. सबसे पहले तो फ्लाइट कॉस्ट. फ्लाइट कॉस्ट में क्या क्या आएगा. फ्लाइट कॉस्ट में पहला लिया है फ्लाइट प्रमोशन जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है इससे फ्लाइट से. फ्लाइट प्रमोशन 28,000 रुपीज़. ये क्वेश्चन में टिक लगाते जाते हैं कि ये वाला हो गया फ्लाइट प्रमोशन. इसके बाद फिर नेक्स्ट है फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट. ये भी स्पेसिफिकली इसी में लगेगा.
फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट में ठीक है 2,38,000 दिया हुआ है। अब लाइबिलिटी इंश्योरेंस, तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस में जो स्पेसिफिक पोर्शन था सिर्फ इस फ्लाइट के लिए, दैट इज़ वन थर्ड पार्ट ऑफ 1,47 इज 49,000। और सैलरी ऑफ सिर्फ फ्लाइट असिस्टेंट की सैलरी लेंगे क्योंकि वो वेरिएबल है, मतलब पर फ्लाइट चार्ज हो रही है, फिक्स नहीं है, इसलिए 31,500। और ओवरनाइट कॉस्ट फॉर फ्लाइट क्रू एंड असिस्टेंट एट डेस्टिनेशन ये आ जाएगा 12,600। तो इसका अगर नेट निकालते हैं तो 5,88,000 माइनस 28,000 238 49 31,500 12,600, तो हमारा नेट गेन आ रहा है 2,28,900 रुपीज़ का। If Golden Pacific Airlines discontinues flight GP022, profits will reduce by 2,28,900. The statement showing loss in operations of 158,100 is misleading for decision making purpose because it accounts for costs that are fixed and irrelevant. However, since flight GP022 yields a net gain of 228,900, flight operation should continue. मतलब ये जो एक्सपेंस आ रहा था यहाँ पे, ये आ रहा था बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑल्सो, जो डिप्रिसिएशन संक कॉस्ट वगैरह थी, मतलब जो अगर आप फ्लाइट नहीं भी चलाते तो भी आपको लगनी है वैसे भी, तो इसीलिए उसको लॉस नहीं मानेंगे। और जो नेट प्रॉफिट गेन हो रहा है अपने को 228,900 का, उसकी वजह से हम फ्लाइट को डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, फ्लाइट को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है अगर फिक्स एक्सपेंसेस को हटा दिया जाए अभी के लिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 6. Question 6 about Aditya Group. Aditya Birla Group ही लिख देते। Aditya Group was established in 1975. Manufacturers and sells electronic. Aditya Group was established in 1975. Manufactures and sells electronic, personal, grooming and beauty products. The group has 200% subsidiaries: Australia Limited and ANZ, AUS Limited and ANZ Limited. AUS Limited manufactures luxury products that cater to niche customers who prefer specialized personal grooming and beauty care. ANZ Limited caters to regular daily beauty and grooming requirements that has a wide reach within the market. Factories of both companies are located within India. The products are sold to wholesalers who supply these products to the retail market. Aditya Group purchases its raw material requirements from both domestic and overseas market. Additionally, certain products manufactured by AUS Limited can be enhanced based on the products manufactured by ANZ Limited. Therefore, as per production requirement, AUS Limited sources some products components from ANZ Limited. मतलब ये branch transfer वाला case है. Aditya Group has a centralized decision making setup. Basic policy decision for functions such as production planning, sales and client relationship, finance and human resources are handled at the group level. Individual units AUS Limited and ANZ Limited concentrate on the manufacturing alone. About you. You are an assistant manager in finance and accounts department of Aditya Group, headed by Director Finance Ms. Elzia. You assist and report to Ms. Fiona, manager of department. Sometimes you also assist Director Finance in analyzing financial and non-financial information, drafting reports for board meetings, preparation of presentation, and staff training. Oh, खतरनाक क्वेश्चन है यार। Business situation 1 and business situation 2. Business situation 1. Yesterday at 5:15 p.m., you got an email from Miss Elzia with CC to Miss Fiona. Miss Elzia asked you to prepare a cost statement for making a quotation to a new customer. She has also informed you that the customer can also maintain a long-term business relation with us. You have been requested to gather information related to the specification from sales manager. कहानी दी हुई है पूरी. Yesterday at 5:25 p.m., you have been called by Miss Fiona and provided the product specification received from sales manager for which quotation has to be quoted.
Ms. Fiona has also requested you to gather relevant information to prepare cost statement due to the expected long-term business relationship that AUS Limited wants to have with the customer. The sales manager wants to quote the lowest possible price. AUS Limited currently has some spare capacity that can be utilized to cater to this entire order. मतलब अपने पास स्पेयर कैपेसिटी है, अपने को एक्स्ट्रा कहीं से लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Therefore, only the relevant cost to AUS Limited has to be considered to arrive at this quote. After meeting with you, After meeting with your reporting officer, you mailed to various concerned department and requested for data. The following information has been obtained in relation to the contract. Today at 10:05 a.m., you got an email from production manager. It has been informed that 40 tons of material DX would be required. This material is in regular use by AUS and has a current purchase price of 380 rupees per ton. Currently, there are 5 tons in inventory. Currently, there are 5 tons of inventory which cost rupees 350 per ton. The resale value of the material in inventory is rupees 240 per ton. तो ये इन्फॉर्मेशन अपन लिखते जाते हैं साथ साथ. क्वेश्चन नंबर 5. प्रोडक्शन मैनेजर ने बताया कि 40 टन ऑफ मटेरियल DX वुड बी रिक्वायर्ड. DX 40 टन रिक्वायर्ड है और करंट परचेज प्राइस जो है मतलब अभी वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोल सकते हैं इसको, 380 रुपये पर टन है. मतलब अभी मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो 380 का पड़ेगा. और ये वाला जो मटेरियल है ये रेगुलर यूज़ में है, मतलब अगर कहीं और से उठा के इसमें भी डालते हैं तो उसके लिए आपको ख़रीदना ही पड़ेगा. और करेंटली देयर आर 5 टन इन्वेंट्री विच कॉस्ट रुपीज़ 350 पर टन. तो 40 में से 5 टन अपने पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो 35 टन अपने को ख़रीदना पड़ेगा. और ये जो 5 टन लिया था ये 350 पर टन पे लिया था. द रीसेल वैल्यू ऑफ द मटेरियल इज़ 240 रुपीज़ पर टन. तो 240 का यूज़ नहीं आएगा, 380 पे लेना पड़ेगा क्योंकि रीसेल थोड़ी करेंगे अपन, तो यूज़ कर ही रहे ना. Further, with regards to components, it has been informed that 4000 component would be required. कंपोनेंट की बात करें अगर तो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है 4000 कंपोनेंट्स लगेंगे. These could be bought externally for रुपीज़ 15 each और alternatively they could be supplied by ANZ. दो ऑप्शन है कि एक्सटर्नल कस्टमर से खरीदेंगे तो 15 रुपये का पड़ेगा, अगर ANZ से ले लेते हैं तो ANZ को वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगी इस कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने की 8 रुपये पर यूनिट. ANZ has sufficient capacity to produce 2500 components without affecting its ability to satisfy its own external customers. मतलब 4000 में से 2500 कंपोनेंट तो बिना किसी उसके दे सकता है. तो अगर एक्सटर्नली ऑक्यूपाई करने पड़ेंगे तो वो पड़ेंगे 1500 और 1500 इंटू 15 22,500 का कॉस्ट लग सकता है एक्स्ट्रा बाहर से प्रोक्योर करने. एक्स्ट्रा तो 4 रुपये लगेगा, सॉरी 7 रुपये लगेगा एक्स्ट्रा अगर बाहर से लेते हैं तो 7 रुपये पर यूनिट. तो 1500 इंटू 7 10,500 का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगा. ANZ Limited has sufficient capacity to produce 2500 components without affecting its ability to satisfy its own external customers. However, in order to make the extra 500 components required by AUS Limited, ANZ Limited would have to forego the external sales of 50,000 rupees. अच्छा, अगर इसको 1500 कंपोनेंट्स देता है तो 50,000 का सेल इसको छोड़ना पड़ेगा ANZ को, which have a contribution to sales ratio of 40%. To have a uniformity in the quality of the component, it is assumed that AUS Limited would procure its entire requirement of 4000 components either externally or from ANZ Limited. तो AUS Limited क्या चाह रहा है कि या तो 4000 पूरा एक्सटर्नली खरीद ले या तो पूरा 4000 ANZ से ले ले. और ANZ से लेगा तो ANZ को 1500 कंपोनेंट्स के लिए 50,000 का सेल्स फोरगो करना पड़ेगा अपना. द ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ आदित्य ग्रुप for sales between units aimed at goal congruence. The unit selling the goods would be allowed to charge any opportunity cost on account of catering to internal demand, while the purchasing unit should ensure that the company is not at a loss.
क्या लिखा है ये? द ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ आदित्य ग्रुप फॉर सेल्स बिटवीन यूनिट्स aims at goal congruence. The unit selling the goods would be allowed to charge any opportunity cost on account of catering to internal demand, while the purchasing unit should ensure that the company is not at loss. Today at 10:45 a.m., you got an email from personnel manager. It has been informed that 2000 high skilled labor hours. तो 10:05 पे अपने को मटेरियल की मतलब उसके बारे में पता चला. 10:45 पे अपने को लेबर के बारे में बताया जा रहा है. It has been informed that 2000 high skilled labor hours would be required. The grade of labor required is currently paid rupees 5 per hour. Highly skilled labor is in short supply and cannot be increased significantly in the short term. This labor is presently engaged in meeting the demand for product G, which requires 4 hours of highly skilled labor. क्या क्या दिया हुआ है? अगर लेबर के बारे में अपन डिटेल लिखें इसमें, तो वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ 2000 हाई स्किल्ड लेबर. The grade of labor required is currently paid rupees 5 per hour. rupees 5 per hour payment होती है. Highly skilled labor is in short supply and cannot be increased significantly in the short term. This labor is presently engaged in meeting the demand for product G. ये भी एक प्रोडक्ट जी बनाने में लगा हुआ है, विच रिक्वायर 4 hours of highly skilled labor. The contribution from sale of 1 unit of product L is rupees 24. प्रोडक्ट एल है ना. एक और नया प्रोडक्ट आया है भाई, एल तो पहले कुछ लिखा नहीं था. It has also been informed that the contract would require a specialist machine. The machine could be hired for 15,000 or it could be bought for rupees 50,000. At the end of the contract, if the machine were bought, it could be sold for rupees 30,000, मतलब 20,000 का पड़ रहा है. Alternatively, it could be modified at a cost of rupees 5,000 and then used on other contracts instead of buying another essential machine that would cost rupees 45,000. मतलब 5,000 का खर्चा करके आप 45,000 की जो मशीन खरीदने वाले थे उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं इसको. The operating cost of the machine are payable by AUS whether it hires or buys the machine. Operating cost तो पे करनी पड़ेगी. These costs would total 12,000 in respect of the new contract. Operating cost जो है वो 12,000 की हो जाएगी. Supervisor. The contract would be supervised by an existing manager who is paid an annual salary of 50,000 and has sufficient capacity to carry out the supervision. The manager would receive a bonus of rupees 5,000 for the additional work. Development time. 15 hours of development time at a cost of 30,000 have already been worked in determining the resource requirements of the contract. Fixed overhead absorption rate. AUS uses an absorption rate of rupees 20 per direct labor hour to recover its general fixed overhead cost. This includes rupees 5 per hour for depreciation. Today at 11:15 a.m., Miss Fiona called you in her place as asked you the following. Required. क्या क्या अपने को कैलकुलेट करना है? Calculate the relevant cost of the contract to AUS. You must present your answer in a schedule that clearly shows the relevant cost value for each of the items identified above. You should also explain each relevant cost value you have included in your schedule and why any values you have excluded are not relevant. Ignore taxation and the time value of money. Second part is discuss two problems that can arise as a result of setting prices using relevant costing. तो पहले बिजनेस सिचुएशन 1 के हिसाब से आंसर करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड सिचुएशन के बारे में देखेंगे. तो स्टेटमेंट शोइंग रेलेवेंट कॉस्ट स्टेटमेंट बना लेंगे. एक टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कौन कौन से टाइप की कॉस्ट लगने वाली है हमको. सबसे पहली कॉस्ट लगेगी मटेरियल की. मटेरियल कौन सा? DX. DX कितना चाहिए? 40 टन. तो इसमें 5 टन तो अपने पास था, बट वहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ से लेके आएंगे तो और रेगुलर यूज़ में रहता है DX, तो वहाँ की भी भरपाई करनी पड़ेगी आपको, इसलिए आपको बाहर से ख़रीदना ही पड़ेगा. और बाहर से ख़रीदने जाएंगे तो अभी प्राइस चल रहा है 380 रुपीज़ का. तो 40 टन आएगा अपना
15,200 रुपये का। एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ पढ़ते ही चलते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, मटेरियल DX is in regular use by AUS Limited and must be replaced, ठीक है। Consequently its relevant value is its replacement cost. The historical cost is not relevant because it is a past cost, and the resale value is not relevant because AUS is not going to sell it because the material is in regular use, ठीक है। फिर सेकंड है अपना कंपोनेंट जो अपने लग रहे हैं। अब कंपोनेंट्स की बात करें तो AUS लिमिटेड वुड लाइक टू प्रोक्योर 4,000 कंपोनेंट्स ईदर फ्रॉम ANZ or externally from the market. At the current production level, ANZ Limited seller has available capacity to accommodate part of AUS Limited request to the extent of 2,500 components. At this point, ANZ Limited would be operating at its maximum capacity. To cater the remaining demand of 1,500 units from AUS Limited, ANZ Limited has to forego external sales of 50,000 to its own customers. Given that the contribution to sales ratio is 40%, therefore ANZ has to forego contribution of rupees 20,000. कैसे 50,000 की अपना टोटल सेल्स फॉरगो करना पड़ रहा है और 40% उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, 20,000 अपना कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगो हो जाएगा इन ऑर्डर टू केटर टू AUS Limited's request. Fixed cost at ANZ Limited is irrelevant since it would be incurred irrespective of whether AUS Limited's order to catered to or not. Therefore, in spirit of goal congruence, the transfer price that ANZ would charges AUS Limited would be the variable cost of rupees 8 per unit and rupees 20,000 towards lost contribution as explained above. Therefore, the transfer price क्या होनी चाहिए अंदर ही अंदर, मतलब 8 रुपये पर यूनिट 4,000 यूनिट्स के लिए 32,000 प्लस 20,000 रुपीज़, total 52,000 for 4,000 components. Therefore, per component the price charge would be 52,000 divided by 4,000 is 13 rupees. This is lower than the external market price of 15 rupees per unit. Therefore, in the interest of goal congruence, the cheaper option is preferred. AUS Limited should source its component from ANZ Limited for a total procurement cost of 52,000 rupees. मतलब ये कि बाहर से अगर मतलब ANZ से अगर बाय करते हैं तो ANZ को अपना फॉरगो करना पड़ेगा 40% कॉन्ट्रीब्यूशन। 40% कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 20,000 रुपीज़ का अगर वो ANZ को सप्लाई करता है तो। और जो AUS की फिक्स कॉस्ट एट ANZ लिमिटेड वो इररिलेवेंट है सिंस इट वुड बी इनकर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर AUS लिमिटेड ऑर्डर देता है या नहीं देता है, तो उसको नहीं देखेंगे। देयरफॉर मतलब कंपनी का गोल कॉन्ग्रुएंस देखने के लिए 8 रुपये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही थी और 20,000 रुपये जो है वो लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। दैट इज़ द ट्रांसफर प्राइसिंग दैट वुड बी चार्ज। अगर उसको इससे सस्ता मिलता है तो वो बाहर से लेता है, बट इससे महंगे प्राइस पे मिल रहा है, दैट इज़ 15 रुपीज़ पर यूनिट पे मिल रहा है, इसीलिए हम इंटरनली ओके वो मतलब लेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे। तो टोटल कॉस्ट इसमें आया 52,000 रुपीज़ का फॉर 4 कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट कॉस्ट है लेबर की, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में कितना रिक्वायर्ड थे, 2,000 हाई स्किल्ड लेबर्स रिक्वायर्ड थे। स्किल्ड लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई and can only be obtained by reducing the production of product G, resulting in a loss of contribution of 24 rupees given or rupees 6 per hour of skilled labor. Hence, the relevant cost will be rupees 6 contribution lost per hour plus 5 rupees of hourly rate of skilled labor, that is 11 rupees per hour. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द ग्रेड ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इज करेंटली पेड रुपीज़ 5। अभी जो काम कर रहे हैं उनको 5 रुपये दे रहे हैं। Highly skilled labor is in short supply and cannot be increased significantly in the short term. This labor is presently engaged in meeting the demand for product G. और अपने को क्या चाहिए, हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए। हाईली स्किल्ड लेबर किस में लगी है, जी में लगी है। अब जी में क्या होता है कि 4 घंटे लगते हैं हाईली स्किल्ड लेबर के। द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेल ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट L इज 24 रुपीज़। इन्होंने क्या लिखा, स्किल्ड लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड कैन ओनली बी ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जी। आपको जी का प्रोडक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा, रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज़ 24। ये मेरे को पता है क्या लग रहा है, यहाँ पे ये जो एल लिख दिया ना गलती से, ये एल नहीं है, ये जी होगा, क्योंकि एल कहाँ से आ जाएगा, एल का तो कुछ है ही नहीं, जी है वो क्वेश्चन में जो एल लिख दिया।
तो एक बार और पढ़ते हैं. विच रिक्वायर 4 hours ऑफ हाईली स्किल्ड लेबर. द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल ऑफ 1 unit ऑफ प्रोडक्ट जी इज ₹24. अगर प्रोडक्ट जी को बेचते हैं अपन तो ₹24 का कॉन्ट्रीब्यूशन आता 1 यूनिट से. बट जी की अपने को कटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अपने को ये वाला प्रोडक्ट बनाना है. मतलब जी में जो हाईली स्किल्ड लेबर लग रहा है वो उठा के इधर लाना पड़ेगा. तो इन्होंने क्या लिखा, स्किल्ड लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड कैन ओनली बी ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जी. ठीक है, रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹24 दिया हुआ है. ₹24 का कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा अपना. और 6 hours ऑफ स्किल्ड लेबर. 6 hours of skilled labor, ₹6 per hour of skilled labor. Contribution from the sale of 1 unit of product is 24. और इसको बनाने में लगते हैं 4 घंटे. तो ₹6 पर घंटा लगता है इसमें हाईली स्किल्ड लेबर का. तो यहाँ से अगर फॉरगो करते हैं तो ₹6 पर आवर ऑफ स्किल्ड लेबर अपने को उसमें डिप्लॉय करना पड़ रहा है नई प्रोडक्ट में. और रेलेवेंट लेबर कॉस्ट विल बी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर आवर प्लस ₹5 जो अभी इसकी कॉस्ट लग रही है, मतलब जो अपन पे करेंगे. तो ₹11 पे अपन इस पे आ जाएंगे. ₹11 पे कैसे है, ₹5 का ₹5 का पेमेंट और ₹6 का कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट. तो ₹11 2000 इंटू 11 इज ₹22,000. डायरेक्ट लेबर हो गया. अब नेक्स्ट दिया हुआ है स्पेशलिस्ट मशीन का. स्पेशलिस्ट मशीन के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर हायर कर दे तो 15,000 की पड़ेगी और अगर बाय कर दे तो 50,000 की पड़ेगी. देखो अगर हायर करेंगे तो 15,000 तो रेंट हो जाएगा और 12,000 जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट वो भी लगेगी. तो 27,000 इज़ द मिनिमम कॉस्ट अगर हायर करते हैं तो. और अगर बाय करते हैं तो 50,000 लगेगा. बट उसको बेचने जाएंगे तो 30,000 मिल जाएंगे और 12,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट है. तो 32,000 आ रहा है एक ऑप्शन ये. बट ये कि अगर और फिर बाय करने में एक और ऑप्शन है कि 50,000 का अगर बाय करते हैं तो एक 45,000 की कॉस्ट है वो अपने को इनकर नहीं करनी पड़ेगी बाद में. हाँ बस 5,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट है, 10,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा. तो इन्होंने क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट में, यूएस लिमिटेड हैज़ अ नंबर ऑफ ऑप्शन. 3 ऑप्शन है इनके पास. पहला ऑप्शन इफ मशीन वर टू बी हायर्ड इट वुड बी अ कॉस्ट ऑफ ₹15,000. सेकंड ऑप्शन इज इफ द मशीन वर बॉट एंड देन सोल्ड एट द एंड ऑफ द वर्क इट वुड हैव अ नेट कॉस्ट ऑफ 20,000. और तीसरा ऑप्शन है इफ द मशीन वर बॉट एंड देन मॉडिफाइड टू अवॉइड द नीड टू बाय द अदर मशीन इट वुड हैव अ नेट कॉस्ट ऑफ ₹10,000. दैट इज 50,000 प्लस 5,000 मॉडिफिकेशन का लेस 45,000 कॉस्ट ऑफ अनदर मशीन. दिस द मोस्ट इकोनॉमिक अप्रोच इज बाय द मशीन एंड देन मॉडिफाइड सो द रिलेवेंट कॉस्ट इज ₹10,000. सबसे कम यही पड़ रही है. तो स्पेशलिस्ट कॉस्ट पे अपन ये डाल देंगे ₹10,000. अब नेक्स्ट बात करिए सुपरवाइज़र की. एक सेकंड, और स्पेशलिस्ट मशीन का 10,000 तो लग ही रहा है और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो तो भले ही आप हायर करो या फिर बाय करो तो मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट तो लगेगी ही ₹12,000 की. अब नेक्स्ट है सुपरवाइज़र के बारे में. सुपरविजन. The supervisor salary is irrelevant but the bonus need to be included because it is dependent on this work and therefore is relevant. मतलब उसको सैलरी तो अपन फिक्स दे ही रहे थे बट इस काम के लिए स्पेशली उसको ₹5,000 का बोनस दिया तो सिर्फ बोनस को ही इसकी कॉस्ट में लेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट में. नेक्स्ट कॉस्ट है अपनी डेवलपमेंट टाइम की. डेवलपमेंट टाइम के बारे में लिखा है डेवलपमेंट टाइम हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड देयरफॉर इट इज़ अ पास्ट कॉस्ट एंड नॉट रेलेवेंट. मतलब पास्ट कॉस्ट नहीं लेते, फ्यूचर कॉस्ट लेते हैं. ये चीज़ भी याद करने लायक है. डेवलपमेंट टाइम में क्या था, 15 hours ऑफ डेवलपमेंट टाइम एट अ कॉस्ट ऑफ ₹30,000 हैव ऑलरेडी बीन वर्कड इन डिटरमाइनिंग द रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इसको नहीं लेंगे. द डेवलपमेंट टाइम हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड देयरफॉर इट इज़ अ पास्ट कॉस्ट एंड नॉट रेलेवेंट. नील.
एट्थ इज जनरल फिक्स कॉस्ट। जनरल फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या बोला है? यहाँ क्वेश्चन में लिखा था AUS uses an absorption rate of ₹20 per direct labor hour to recover its general fixed overhead cost. This include ₹5 per hour for depreciation. Answer is general fixed overhead cost and their absorption are not relevant because they will be incurred whether the work goes ahead or not. काम हो या ना हो, ये खर्चा होगा ही. Depreciation is also not relevant because it is an accounting entry based on the historical purchase of asset. It is not affected by the work being considered. Depreciation भी नहीं लेंगे. This includes ₹5 per hour for depreciation. क्वेश्चन में लिखा हुआ है. और एब्जॉर्प्शन रेट है ₹20 पर डायरेक्ट लेबर आर टू रिकवर इट्स जनरल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट. इसको भी नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जनरल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एंड देयर एब्जॉर्प्शन आर नॉट रेलेवेंट बिकॉज दे विल बी इनकर्ड वेदर वर्क गोज अहेड और नॉट. काम हो या ना हो, ये अपने को वैसे भी करना ही पड़ता है, तो इसीलिए इसमें नहीं लेंगे, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट में नहीं लेंगे. तो इसका टोटल कर लेते हैं. 15,200, 52,000, 22,000, 10,000, 12,000 और 5,000. टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ गई 1,16,200 रुपये की. एज पर हमारा फर्स्ट बिजनेस सिचुएशन. ठीक है, तो क्वेश्चन में भी यही पूछा था हमसे कि कैलकुलेट द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू AUS. You must present your answer in a schedule that clearly shows the relevant cost value for each of the item identified above. तो ये एक एक आइटम के बारे में बता दिया और डिस्कस 2 प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ सेटिंग प्राइजेस यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग. ये तो थ्योरी वाला आंसर है. तो इसको डिस्कस करते हैं. 2 मेन इश्यूज अराइजिंग व्हेन प्राइसिंग वर्क बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट. अगर रेलेवेंट कॉस्ट के हिसाब से अपन प्राइसिंग करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं? 2 प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. एक होती है प्रॉफिट रिपोर्टिंग की और दूसरी होती है प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर वर्क की. प्रॉफिट रिपोर्टिंग एंड प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर वर्क. विद रिगार्ड टू प्रॉफिट रिपोर्टिंग, ये जो पैरा है ये प्रॉफिट रिपोर्टिंग का है, ये जो दूसरा पैरा है ये प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर वर्क का है. With regard to profit reporting, the decision as to whether to proceed with the work will have been based on the use of relevant cost, but the routine reporting of the profit from the work will be based on the company's normal accounting system. मतलब रेलेवेंट कॉस्ट तो आपको सिर्फ वही बताएगी कि जो प्रॉफिट आपको उस काम से मिल रहा है, बट एज एन टोटल जब आप प्रॉफिट निकालोगे कंपनी का, वो तो आप नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम से निकालोगे, उसमें आपको फिक्स कॉस्ट भी लेनी पड़ेगी. उसमें सिर्फ आप जो रेलेवेंट उसका उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है सिर्फ वो नहीं ले सकते. Since this system will be based on total cost, it is probable that the cost of the work reported will be greater than its relevant cost, obviously. Consequently, the amount of profit reported to have been made on this order will be lower than expected and may even be a loss. This may cause difficulties for the manager who accepted the work, as an explanation will be required of the reason why there is such a difference in profit. बताना पड़ेगा भाई आपको प्रॉफिट रिपोर्टिंग, क्योंकि प्रॉफिट रिपोर्टिंग मतलब एक्चुअल प्रॉफिट तो वही होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट. अब सेकंड बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर वर्क की. विद रिगार्ड टू द प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर वर्क, द डिफिकल्टी लाइज इन इंक्रीजिंग द प्राइस for similar item for the same customer in future. Once a price is set, customers tend to expect that any future item will be priced similar. सही बात है. However, where a special price has been offered based on relevant cost because of the existence of spare capacity. हाँ, यहाँ पे क्या हुआ कि आपने स्पेशल प्राइस दिया कस्टमर को. क्यों? क्योंकि आपके पास अभी स्पेयर कैपेसिटी थी. द सप्लायर वुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू टू प्राइस ऑन दैट बेसिस एज इट डज नॉट रिकवर इट्स लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट. There may also be difficulties created by this method of pricing as other customers are being charged on a full cost basis, and if they were to discover that a lower price was offered to a new customer, they would feel that their loyalty was being penalized. सही बात है. या आप नया कस्टमर आ रहा है, उसको अगर आप स्पेयर कैपेसिटी की वजह से कम चार्ज कर रहे हो और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उससे आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, तो उसको तो लगेगा ना कि भाई मुझसे क्यों ज़्यादा चार्ज हो रहा है. तो ये प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर वर्क, ये भी देखना पड़ता है अपने को प्राइसिंग करते टाइम. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिजनेस सिचुएशन 2. This is today at 5:26 p.m. A memo from managing director of the group has been circulated to all officers of the group, which stated my objective for the forthcoming year is to reduce our quality cost,
in each of the primary activities in our value chain. The company is keen to build a reputation for quality and gives a 5-year guarantee with all of its products. 5 साल की गारंटी देंगे. Then today at 5:37 p.m. Miss Fiona called you in her place and asked the following. Required. Explain by giving examples how each of the 4 type of quality cost could be reduced. You should also identify in which primary activity each one of your examples would occur in Aditya Group's value chain. बार बार बुला लेती है, सवाल पूछती रहती है मिस फियोना. अब इसको जवाब दो. क्वालिटी कॉस्ट के बारे में पूछा है ना कि 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट क्या होती हैं, तो वही होती हैं अपनी प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर. प्रिवेंशन कॉस्ट में क्या होता है? ऑपरेशंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड चेकिंग ऑफ द कैलिब्रेशन ऑफ मशीनरी. दिस वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ potentially faulty products being produced and therefore reduce guarantee claims. प्रिवेंशन मतलब आप पहले ही कर लो, प्रिवेंट कुछ होने से पहले ही, मतलब कुछ होने के बाद कॉस्ट इनकर करने से अच्छा है कि पहले ही आप प्रिवेंशन लेते रहो. अप्रेजल कॉस्ट, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, रिड्यूस कॉस्ट. अच्छा, इन लोगों ने क्या किया है कि ये प्रिवेंशन के अंदर भी ना बहुत सारे आते हैं, तो इसमें सिर्फ कौन सा लगेगा? ऑपरेशन लगेगा. इसमें प्रिवेंशन में भी ऑपरेशंस पे लगेंगे. और अप्रेजल कॉस्ट कहाँ पे लगेगी? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स पे लगेगी. Reduce cost of incoming inspection by building close links with supplier and getting them to adopt TQM. If suppliers can guarantee their quality, then inbound inspections could be eliminated. Reduce cost of incoming inspections by building close link with suppliers and getting them to adopt total quality management. If suppliers can guarantee their quality, then inbound inspections could be eliminated. Internal failure में भी operations पे जाएंगे अपन. Reduce cost of reworks by training employees on a continual basis. Example, quality circles. This would reduce failure cost and also improve quality. External failure में service पे जाना पड़ेगा. Services design quality into the product to try to prevent guarantee claims and therefore the cost of servicing or repairing the product. तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया. अच्छा था यार, बड़ा क्वेश्चन था बहुत.